अब सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, बहुत शॉर्ट फैक्ट था, in the backdrop of the facts of this case, we considered it fit to frame guidelines on certain aspects pertaining to the payment of maintenance in matrimonial matters. There are different statutes, ये relevant है जिस पर कि आगे फोकस किया गया. There are different statutes providing for making an application for grant of maintenance, interim maintenance, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, children, parents. The different enactments provide an independent and distinct remedy framed with a specific object and purpose. In spite of time frames being prescribed by various statutes for disposal of interim application, we have noticed in practice that a vast majority of cases the application are not disposed of within the time frame. इस केस में क्या हुआ था, इंट्रीम मेंटेनेंस का ही 7 साल लग गया था. तो एक फोकस है सुप्रीम कोर्ट का कि इंट्रीम मेंटेनेंस का जो प्रेयर हो उसको जितना जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा. To address various issues which arise for consideration in application for grant of maintenance, interim maintenance, it is necessary to frame guidelines to ensure that there is uniformity and consistency in deciding the same. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फोकस किया, पटना हाई कोर्ट ने तो कई साल 10 साल पहले फोकस किया था कि इनकंसिस्टेंसी नहीं है डिफरेंट फैमिली कोर्ट से. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंसिडर किया है. To seek assistance on these issues, we have appointed M.S. Anita Shenoy and Mr. Gopal Shankar Narayan, senior advocates, as amicus curiae, who have graciously accepted to assist the court. अब फैक्ट्स तो कुछ था नहीं, कितना रुपया देना है, कितना रुपया नहीं देना है, ये सब मैटर फैक्ट्स का है जो वहाँ पर कंसीडर हो गया. लास्ट में उनको डायरेक्शन हो गया. इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस वी ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 24/8/15 पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट नागपुर अफर्म्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच डेटेड सो एंड सो फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस 15,000 पर मंथ टू द रेस्पोंडेंट वाइफ and rupees 10,000 per month to the respondent to son is hereby affirmed by this court. तो मेंटेनेंस का फैमिली कोर्ट का भी ऑर्डर अफर्म हो गया और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर अफर्म हो गया. इस फैक्ट्स में कोई डिस्प्यूट नहीं था. द जजमेंट ऑर्डर था पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट. और दूसरा है द हस्बैंड इज डायरेक्टेड टू पे द इंटायर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस so and so within a period of 12 weeks from the date of judgment and continue to comply with his order during the pendency of proceeding under section 125 CRPC. तो इंट्रीम मेंटेनेंस का था. सुप्रीम कोर्ट आते आते काफी समय लग गया. आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ द अपलेंट हस्बैंड फेल्स टू कंप्लाई विद द अफोरसेड डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट it would be open to the respondent to have the order enforced under section 125 CRPC. तो एक ही recourse है. And take recourse to all other remedies which are available in accordance with law. The proceeding for payment of interim maintenance under section 125 have been pending between the parties for a period of over 7 years. Now, we deem it appropriate that the family court decide the substantive application under section 125 CRPC in petition number so and so, finally in light of the direction guidelines issued in the present judgment within a period of 6 months from the date of this judgment. The registry is directed to forward a complete copy of the pleadings along with the written submission filed by the parties and the record of the proceeding in the present criminal appeal to the family court Nagpur. The present criminal appeal is disposed of accordingly. तो मेन कंसर्न था डिले इन पासिंग ऑर्डर सो फार एज इंट्रीम मेंटेनेंस कंसर्न. अब इंट्रीम मेंटेनेंस में अगर 7 साल हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए कौन आता है. वन हु इज नॉट हिमसेल्फ कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हु इज अनेबल टू मेंटेन, और उसमें इतना डिले होना चाहिए. तो फर्स्ट फोकस इज ए टाइम कंस्ट्रेंट. इंट्रीम के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए. इंट्रीम चूंकि इंट्रीम में आप जो ऑर्डर करते हैं ऐसे भी प्रावधान है, कभी भी वेरिएशन हो सकता है. 125(7) का एप्लीकेशन करके इन्हेंसमेंट भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है. वो CRPC में तो प्रावधान है ही.
तो इंट्रीम में डिले नहीं होना चाहिए, इंट्रीम में एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ शो कॉज का होना चाहिए, हियरिंग का होना चाहिए, रीजनेबल टाइम 1 महीना 2 महीना 3 महीना रीजनेबल है, उसको ज़्यादा लिंगर नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। और जहाँ पर कि 125 में भी है और अदर एक्ट्स में भी है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रावधान हो गया है मेंटेनेंस का, उस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। ये जजमेंट में ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन मेंटेनेंस का इशू बना करके और उसको कंसीडर किया है। तो इसमें प्रावधान जो है मैरिज एक्ट का, स्पेशल मैरिज एक्ट का, सभी एक्ट का उसमें कंसीडर करके और बहुत सारे जजमेंट को कंसीडर किया गया है। इंट्रीम एलिमोनी, परमानेंट एलिमोनी, ये सब के बारे में भी कंसीडर किया गया है। जजमेंट का फैक्ट्स तो खत्म हो गया, अब ये सिर्फ डिस्कशन है कि कहाँ कहाँ किस एक्ट में मेंटेनेंस का प्रावधान है, और अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर 2 कोर्ट से या 3 कोर्ट से हो जाता है तो उसका समावेश कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा उठता है कि 125 में मान लिए हो गया 1000 रुपया मेंटेनेंस का, और फिर हिंदू मैरिज एक्ट में उसको हो गया 2000 रुपया, तो क्वेश्चन होगा कि दोनों दिया जाए कि 2 में से 1 दिया जाए, या क्या किया जाए, सेट ऑफ किया जाए। तो लॉ इज ए साइलेंट, क्योंकि अलग अलग एक्ट अलग अलग परिदृश्य में बना। सीआरपीसी का तो सबसे पुराना प्रावधान है, ये पुराना सीआरपीसी में जो 1973 के पहले था तो 488 प्रावधान था, 488 एग्जैक्टली 125 हो गया। तो उस समय तो ये सब एक्ट था नहीं ओल्ड सीआरपीसी में के समय में, तो बाद में बना। तो इसका कोई हार्मोनियस रिलेशन एक एक्ट का दूसरे एक्ट से नहीं रहा, तो इसलिए जुडिक्शन एक तरह से ओवरलैप करता है। इसीलिए सभी एक्ट के प्रोविजन को, जहां जहां मेंटेनेंस का प्रावधान है, उस सभी को कंसीडर किया गया है। तो सबके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, रेलिवेंट सेक्शंस हैं, उसको डिस्कस करने के बाद दूसरा कि मेंटेनेंस के लिए क्या देखना है। एक तो दोनों व्यक्ति का स्टेटस भी देखना पड़ता है, जो मेंटेनेंस देने वाला, मेंटेनेंस मांगने वाला, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, किस सोसाइटी से आ रहा है वो भी देखना पड़ता है, बच्चों के लिए उसका बेटर प्रोस्पेक्ट क्या है, उस फैमिली रहता तो क्या होता है ये भी देखना पड़ता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना पड़ता है, और उसका रेगुलर इनकम क्या है, मंथली एनुअल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो मेंटेनेंस मांग रहा है वो वाकई में वो अनेबल टू मेंटेन है कि नहीं है, कैपेबल टू मेंटेन है कि नहीं है। तो ये सब, इस पर तो लॉन्ग लाइन ऑफ जजमेंट है, आप लोगों ने काफी जजमेंट देखा होगा, इसलिए उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले अमाउंट मेंटेनेंस का था जिस व्यक्ति का, मान लीजिए कि अगर कोई पुराना केस है और 1000 रुपया मेंटेनेंस का एक साल पहले या 10 साल पहले दिया गया हो, आज वो इंटाइटल है इन्फ्लेशन के वजह से कि वो इन्हेंसमेंट के लिए प्रेयर कर सके 127 में, तो उसको भी कंसीडर करना है कि वो दैट अमाउंट हैज नाउ बिकम इनसफिशिएंट फॉर मेंटेनेंस। तो इसीलिए पहले से लेजिस्लेशंस ने वो प्रावधान बना दिया गया है कि वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो मेंटेनेंस का पिटिशनर है, जिसको मेंटेनेंस अवार्ड किया गया है, उसका बाई लैप्स ऑफ टाइम कुछ इनकम आना शुरू हो जाए तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो सारा प्रावधान है ही है। डिफिकल्टी वहां होती है जहां पर कि कई एक्ट में और साइमल्टेनियसली या आगे पीछे ऑर्डर पास हो गया हो। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, वही गाइडलाइंस और क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग मेंटेनेंस, ये जरूरी है। वो क्राइटेरिया का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और जो आप लोग के लिए भी जरूरी है, हर केस में आपको मेंटेनेंस का क्वांटम डिसाइड करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। एक पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग से पॉइंट फ्रेम करके लिखा है, हम उसी को पढ़ते हैं। अगर आपके पास जजमेंट हो तो आप निकाल सकते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 3 रोमन में लिखा हुआ है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस।
क्या क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस. The objective of granting interim permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not reduced to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded. तो कोई इसके लिए जैकेट फॉर्मूला नहीं, केस के ऊपर, पार्टीज के स्टेटस के ऊपर, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, और कहाँ का है, किस प्लेस का है, वहाँ का क्या सिचुएशन है, और एसेंशियल कमोडिटीज का मार्केट रेट क्या है, मेंटेनेंस के लिए कितना अमाउंट सफिशिएंट है कि नहीं है, ये सब बहुत क्राइटेरिया. तो इसलिए कहा देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला. द फैक्टर्स व्हिच वुड वे विद द कोर्ट इंटर एलिया आर द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, जो हम पहले बता चुके हैं, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, whether the applicant is educated and professionally qualified, whether the applicant has any independent source of income. ये सब तो प्राइमरी इंक्वायरी करना ही है. एविडेंस लोग देते ही हैं, इतना अवेयरनेस आ गया है तो काफी पुराना समय से चल रहा है. इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, whether the income is sufficient to enable her to maintain the same standard of living as she was accustomed to in her matrimonial home, whether the applicant was employed prior to her marriage, whether she was working during the subsistence of the marriage, whether the wife was required to